The young people are the ones who most quickly identify with the struggle and the necessity to eliminate the evil conditions that exist. Hello, I am Resham and you're watching DNP India. Firstly, welcome back to our channel. And in case if you haven't subscribed to our channel, then please do it now. And do not forget to share this video as well as the other videos on our channel. Thank you. So 12th standard, board examinations. Well, you all will definitely agree with me that this is one of the most crucial and important year of our lives. And no matter how many times हम इस fact को deny करें कि 12th matter नहीं करती, marks matter नहीं करते, it's just a phase of our lives. Well, I agree कि of course it is a phase of our life, but an important one indeed. और हर एक स्टूडेंट की लाइफ में ये अहमियत रखता है. सो प्रेशर से डील करना, एक स्लाइट नर्वसनेस से डील करना, दूसरे स्कूल में और कम्प्लीटली डिफरेंट स्कूल में जाकर एग्जाम देना, ये भी तो एक अलग एक्सपीरियंस ही होता है ना, विच एवरी इंडिविजुअल विल लाइक टू गो थ्रू, राइट? इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इन द एंड, है ना? बट नाउ with board exams cancellation, results to be declared on the 31st of July, and in case अगर कोई student अपने ही result से या इस process से satisfied नहीं है, then he or she can actually appear for a physical exam in August. और इस update पे भी as such कोई clarity नहीं है. So I thought me talking about it and discussing about it really not giving you much of a clarity, right? So I thought why not speak to the ones who are actually in that situation, facing it for more than a year. Yes, जहाँ एक तरफ रिजल्ट का थॉट एंड हाउ मच दे कैन एक्सपेक्ट टू गेट इन देयर फाइनल एग्जाम्स, तो दूसरी ओर एंट्रेंस एग्जाम्स, उसकी प्रिपरेशन, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन. So to give us better and more insights on the current situation and what exactly is there in their mind. So in today's segment we have with us Sanvi Singh Chahar from Cambridge School Indrapuram, Jia Goyal from Hansraj Model School Punjabi Bagh New Delhi, Bhavya Gupta from Delhi Public School Rohini, and Sargam Mishra from Delhi Public School Rohini again. And these very bright 12th standard students are going to share their own experiences and their take on the current scenario. जहाँ एक तरफ we think that things are coming back on track for these students as well, but is it really coming back on track? Let's find. So connecting with us and welcome to DNP India. So how does it feel that things are coming back on track? कि कुछ चीज़ें के announcement हो चुके हैं कि results आने वाले हैं, क्या है? So or is it really on track? So I want to know your take on that first. Starting with you, Sanvi. I would say that things are coming back on track. मतलब, but the main problem is that जो clarity आ रही है and all the announcements that are being made, वो बहुत intervals पर आ रही है. तो like एक announcement अभी होता है and दूसरा announcement जो है वो उससे related ही है, but वो बहुत बाद में आता है. तो in the meantime हमें पता नहीं होता कि like where should we focus, मतलब हमारा inclination किस side पे जाना चाहिए. Because जब 10th के boards cancel हुए थे initially, तो उसके 2 months बाद 12th का अनाउंसमेंट आया था 1 जून को कि कैंसिल हो गया. तो फॉर दोज 2 months वी वर लाइक कि क्या हमें प्रिपेयर करना चाहिए बोर्ड्स के लिए, क्या हमें एंट्रेंस पे फोकस करना चाहिए. बट स्टिल क्योंकि न्यूज में बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही थी जिनमें कोई क्लैरिटी नहीं थी, सो वी वर स्टिल फोकसिंग ऑन CBSE क्योंकि CBSE वाज मतलब बिल्कुल पास में ही आने वाला था. तो वी वर ट्राइंग टू फोकस ऑन CBSE एंड फिर अनाउंसमेंट आया कि अब CBSE के बोर्ड्स कैंसिल हो गए. फिर उसके बाद एकदम से वी हैड टू शिफ्ट बैक टू आवर एंट्रेंस प्रिपरेशन. तो वो थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी नहीं मिलती है. एंड अभी भी जैसे कॉलेजेस, अगर हम सिर्फ कॉलेजेस पर ध्यान दे रहे हैं तो कॉलेजेस में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें श्योरिटी नहीं है. जैसे DU इज टोटली बेस्ड ऑन CBSE एंड CBSE हैज सेड कि 31st को रिजल्ट आएगा एंड दैट रिजल्ट इज जो स्कूल हमारा बना कर देगा. एंड आई फील इज दैट इज टोटली अनफेयर. मतलब अगर स्कूल हमारा असेसमेंट कर रहा है, बिकॉज CBSE में एक बोर्ड होता है, वही ऑल ओवर इंडिया सबका रिजल्ट बनाता है. बट स्कूल सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग टीचर्स होती हैं जो चेक करते हैं, तो बायसनेस आ जाती है. कुछ स्कूल्स में यू मे हियर कि ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर्स देता है और कुछ स्कूल्स नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो दे ट्राई टू से कि हम प्री बोर्ड्स में फुल मार्क्स नहीं देंगे, ये कहकर कि आप और मेहनत करो तो आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे ले आओगे. दैट दे टेल अस अ रेंज कि अगर आप प्री बोर्ड्स में इतने ला रहे हो तो आपके बोर्ड्स में इससे 10% ज्यादा तो आ ही जाएंगे.
सो दे होल्ड अस बैक. वो हमको मतलब बहुत टाइट एंड स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, हमें जानबूझकर कम मार्क्स देते हैं, नॉट टू डीमोटिवेट अस बट टू मोटिवेट अस कि चलो हम और ज्यादा मेहनत करें. It's their way, right? Yeah, it's their way. अब we never knew कि अब ये वाला जो उनका वे है, the whole examinations जो हमने ऑनलाइन सारे दिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर हमने जितने भी छोटे छोटे असेसमेंट दिए, MCQ, most of them were MCQs. फिर उसके बाद we turn to subjective. हमें भी यूज टू होने में टाइम लग गया था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज एवरीवन नोज बहुत सारे बच्चे चीटिंग भी करते हैं, बट द वंस जो नहीं करते हैं वो और जो चीटिंग करते हैं, दे ऑल केम टू द सेम ग्राउंड. मतलब वो तो इक्वली हो गए ना, चाहे जो अच्छा बच्चा है पढ़ने में और जो अच्छा बच्चा नहीं है पढ़ने में, वो सब इक्वल हो गए. क्योंकि अब स्कूल के बेसिस पर हो रहा है, तो वी आर स्कैर्ड कि अगर हमारे पास बोर्ड्स की अपॉर्चुनिटी होती तो हम बहुत अच्छे नंबर ले आते. और क्योंकि हमारा मेन फोकस वही था, हमें शुरुआत से यही बताया जाता है कि प्री बोर्ड्स मैटर नहीं करते, 12th में इंटरनल मार्क्स कुछ मैटर नहीं करता, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन बोर्ड्स. और आप बोर्ड्स में ले आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पहले कितना है. एंड ऑल ऑफ अ सडन अब प्री बोर्ड्स के मार्क्स ही मैटर कर रहे हैं, एंड उसमें इतने वेरिएशंस होते हैं दैट वी आर स्कैर्ड कि जितने हम बोर्ड्स में ला सकते थे अब वो हम प्री बोर्ड्स के बेसिस पर नहीं ला सकते. तो एक तरीके से हमारी जो होप है, जो उम्मीद होती है ना कि हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो कट डाउन हो गई. सेकेंड बात ये आती है कि DU इज टोटली बेस्ड ऑन CBSE, क्योंकि वो CBSE मेरिट बेसिस पर. अब मेरिट की कट ऑफ भी सबको पता है कि DU के टॉप कॉलेजेस की कितनी जाती है. जैसे सेंट स्टीफेंस की इकोनॉमिक्स ऑनर थे 99.25, एंड वो स्कूल के बेसिस पर आना, अगर स्कूल इंटरनल असेसमेंट करके दे रहा है, दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल. क्योंकि स्कूल अपना भी एवरेज बढ़ा नहीं सकता इस साल, उसको अपने एवरेज के विद इन ही रहना पड़ेगा, या 1-2% की डिफरेंस आ सकती है. तो अब 31 जुलाई को हमारा स्कूल अनाउंस करेगा रिजल्ट. फिर 15 अगस्त से 15 सितंबर टेंटेटिव डेट्स आई हैं कि CBSE ऑप्शनल बोर्ड्स हो सकता है. वी स्टिल नॉट श्योर, क्योंकि अब थर्ड वेव भी आ रही है एंड डेल्टा के भी केसेस आ रहे हैं, डेथ्स भी एक आध मतलब सुनने में आई है. तो अब 15 अगस्त अगर और 15 अगस्त से 15 सितंबर अगर ऑप्शनल बोर्ड्स हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो द हाई टाइम जहाँ पर मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं. बिकॉज टुमारो ऑल्सो वी हैव एन एंट्रेंस एग्जाम, एंड अब से ये मतलब स्टार्ट होगी, मतलब इट्स अ सीरीज ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स की अब स्टार्ट हो गए हैं. एंड दीज आर मोस्टली द प्राइवेट वंस, एंड लाइक IP यूनिवर्सिटी, NMIMS, सिम्बायोसिस. तो इनका हमने दे दिया, बट द वंस हु आर एस्पायरिंग फॉर DU, इट्स स्टिल वेरी अनसर्टेन कि पेपर पैटर्न कैसा होगा अगर वो एंट्रेंस ले रहे हैं, और CUCT होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं पता. पेपर पैटर्न कैसा होगा, कट ऑफ कैसी होगी, हमारी अप्रोच, स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज अ लिटिल मेस्ड अप राइट नाउ. तो अगर 15 सितंबर को ऑप्शनल बोर्ड्स मान लीजिए खत्म होते भी हैं, तो दे विल टेक टाइम फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि हमारे स्कूल ने 2 महीने लगा दिए अभी रिजल्ट्स निकालने के लिए. CBSE बोर्ड विल ऑल्सो टेक टाइम बिकॉज ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स विल गिव द एग्जाम, जो भी सिलेक्टेड होंगे, जो देना चाहेंगे अपनी मर्जी पे. तो रिजल्ट आने में टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर में आया, नवंबर में एडमिशन प्रोसीजर या रजिस्ट्रेशन जो भी स्टार्ट होती है DU के, एंड दिसंबर में जाके सेशन स्टार्ट होगा. तो मतलब ये पूरा डिले हो गया है. वंस इट्स कंफर्म कि कैसे करना है, क्या करना है, तो वी आर ऑल्सो स्टिल वेटिंग फॉर 15 जुलाई, बिकॉज 15 जुलाई में बोला था DU ने कि वो बताएगा about the entrance, admission, registration process. So we are waiting for 15 July, then we are waiting for 31st July, फिर we are waiting for 15th August to 15th September, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या होगा. तो मतलब nothing is actually on track. Academically strong बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा I think it's not justified. आपकी बातों से मुझे यही लगा. And yeah, you are still hoping कि और अच्छे से clarity मिले. So Jia, what's your take on that, about things being on track and not? Tell me about it. For me, it is on track kind of, because मेरा साल के शुरू से ही focus was on entrance exams. Okay. And what are you preparing for? Pardon? What are you preparing for? I'm preparing for Narsi Munji IMS NPAT exam, and IIM Indore. Okay. So I have a target कि मेरा 15 जुलाई को पेपर है, तो I have to prepare for that only. And मेरा कल भी एग्जाम है NPAT का, so I have to give that. So boards kind of matter to me, क्योंकि फ्यूचर में भी 12th के मार्क्स कहीं ना कहीं for placements and all देखे जाते हैं हर जगह.
तो दैट वुड मैटर, बट एक फॉर अंडर ग्रेजुएशन इतना नहीं फर्क पड़ेगा मेरे को। And Bhavya, what's your take on that? मेरा भी एक्चुअली मैं भी शुरू से ही 11th से इनफैक्ट एंट्रेंस की तैयारी कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई। Okay. तो मतलब बट इट्स जेई में तो इट्स वेरी डिफिकल्ट आई थिंक कि उसके थ्रू एडमिशन लेना इज काइंड ऑफ एन आइडियलिस्टिक थिंग। मतलब आपको एक बैकअप के लिए बोर्ड्स के मार्क्स पे हम लोग डिपेंड करते ही हैं, एंड इवन गुड यूनिवर्सिटीज लाइक थापड़ यूनिवर्सिटी इज अ डिसेंट यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी वो लोग बोर्ड्स वगैरह कंसिडर करते हैं। एंड ऑल्दो देयर इज स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब वो जो 5% वाला था कि आप ऊपर नीचे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू जो स्कूल की प्रीवियस ईयर एवरेजेस आई हैं, बट मेरे को फिर भी लगता है कि 5% से कुछ हो नहीं पाएगा, बिकॉज मेरे शायद 11th में शायद 84 के आसपास थे, 10th में बहुत अच्छे थे, 10th में 97-98 के बीच में थे मतलब। और लेकिन फिर 12th में अगेन मेरा मेन फोकस जेई था, तो मैंने इतना जो स्कूल के एग्जाम्स हो रहे थे स्पेशली ऑनलाइन वगैरह में इतना नहीं दिया, बस एग्जाम दे दिया, दैट वाज इट। मैंने उसके लिए कोई प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं की, तो अब उसके लिए तो पे करना पड़ेगा। एंड कितने लोगों ने चीटिंग करके लाइक ऑनलाइन में इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है अगर स्कूल चाहे भी तो वो नहीं रेगुलेट हो पाएगा मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से। बट उसका क्या सीन है, मतलब क्या उसकी क्लैरिटी नहीं है, व्हाट इज इट? हाँ, उस एक्चुअली हमारे 4 फेजेस में होना है जेई मेंस का एग्ज़ाम, जो जिससे ज़्यादा काफ़ी सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं जो बीटेक एंट्रेंस के लिए। तो उसमें 2 हो चुके हैं, 2 बार हो चुका है एंड 2 और होने हैं। तो उसमें जो भी आपके, अगर आपको 4 अटेम्प्ट्स देने आप कितने भी दे सकते हो, एंड उसमें से जो बेस्ट होगा वो लगेगा। सो आई हैव गॉटन अभी मार्च में आई हैव गॉटन 98.3 इन दैट, which is decent, but I'm hoping to improve that. अभी उसकी भी कोई डेट्स नहीं आई हैं, थर्ड वेव से पहले होपफुली हो जाए, बट उन्होंने देन अगेन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, एडमिट कार्ड आना होगा, उस सब में टाइम लगता है, एंड उन्होंने बोला 15 दिन पहले बताएंगे एग्जाम से, सो होपफुली हो जाए थर्ड वेव से पहले। And Sargam, what about you? I am also a science student. I have medical. So in a sense मैं भी खुशी हूँ कि मतलब कुछ हद तक I think all science students will be happy कि we have been able to do away with the boards now. We can focus only on our entrance exams. तो वो एक relief तो रहता ही है, and of course boards cancel होने से safety issue तो foremost था ही. But also I can't but feel disappointed to an extent, and like that's because all our lives हमें यही कहा गया है कि what you're aiming for is to score well in the boards. 12 boards तो school life का एक तरह से closure होता है, and that just straight up being cancelled, वो एक बहुत बड़ा shock भी था, आधा relief आधा shock। और इस evaluation policy को लेकर तो I think many students are unhappy because like Sanvi and Jia and Bhavya said, it's very unfair to good students, which is ironic because like I know so many people जो हर एग्जाम में ही चीटिंग करते थे। और अबाउट द इवैल्यूएशन पॉलिसी 11th के मार्क्स लगना, तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट, बिकॉज 11th इज सच अ क्लास वेयर एवरीबडी नो मैटर विच स्ट्रीम गेट्स अ शॉक। और further, not just the curriculum which increases in difficulty, it's also our teachers who are marking us, मतलब कम नंबर देते हैं कि 12th के लिए प्रिपेयर करें, और पेपर इतना डिफिकल्ट आता है अलॉन्ग विद जो हमने अभी सब्जेक्ट्स लिए हैं, वी हैव नेवर स्टडीड देम बिफोर। फॉर एग्जाम्पल कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो 10th तक तो होते ही नहीं है। सो वी आर ऑल गेटिंग एक्लिमेटाइज्ड टू दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ सॉर्ट्स, एंड टू मार्क अस in 12th grade on the basis of that performance is just not done. It's nobody takes 11th seriously. We have just come from 10th boards देके आए हैं, सब थके होते हैं और सबकी परसेंटेज बहुत बहुत स्टीप डिप देती है। तो 11th तो ऐसी बात, और पर मतलब अगेन the alternative is what, to conduct CUSET or entrance exams. That will also not be fair because उसकी तैयारी तो पूरी तरह ही अलग होती है। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर किसी की अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि वो एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छा लाए। तो लाइक इस समय देयर इज रियली नो वे आउट। जो भी आप रास्ता ले लें, there will be some people who are happy with it, some people who are unhappy with it. So we cannot even completely blame the government in this situation, although we may have some disapproval on what they did. But like इस समय कोई भी कुछ नहीं कर सकता, criticism ही मिलेगा। But I do think कि अगर स्टूडेंट्स को वैक्सीनेट करा कर बोर्ड पोस्टपोन करा देते, मतलब they still have given us the option of retaking the boards if we are not satisfied, but
a very minimal population of the students will do that. I think majority हमारी क्लास में से भी अगर पूछे तो 2-3 बच्चे ही होंगे जो देने वाले हैं. And I am also included. I don't want to go through the whole procedure of preparing for my boards and giving them again. So वो तो I don't think that will matter much कि they are allowing us to take the board with them. I think it would have been ideal if they had vaccinated all students and then postponed the boards to say August, where they are now taking the second round of boards for this month. And already I think the majority of students appearing for the boards were in the 17 and 18 age. Some may have been from 16, but I know many people who are 17-year-olds and they have gotten vaccinated, because vaccination drives में they are seeing the year of birth and not the date of birth. So if they are already vaccinating 17-year-olds, then they should have banked upon it. They should have उसका फायदा उठाना चाहिए था और boards को postpone कर देना चाहिए मेरे हिसाब से. Well, that's a really good point that you pointed out. And अभी जैसे आपने बोला कि एग्जाम्स की you gave an other alternative. तो मैं दूसरे लोगों से, you are the young minds, you the youth, आपके I know बहुत सारे ideas होंगे, आप लोग सोचते रहते होंगे. So I would want to know your take कि और कौन से, like she mentioned about vaccination and उसके बाद हम boards ले सकते थे. आप तीनों का क्या कहना है कि और if you have any alternative other than that कि अगर कोई और way out है कि boards ले सकते थे और या लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, या कोई और other innovative way you have in mind, then please share it with our audience. I think like Sargam said, I totally agree to her, because मेरा भी same point था कि boards आप अभी भी 15th August से 15th September tentative dates जो आई हैं आप तब भी ले रहे हो. और अब I think most of the students are getting vaccinated now. I just got vaccinated yesterday. So and some of my friends got vaccinated today. Some of them are getting vaccinated tomorrow. तो हमारा जो friends group है अब everyone is becoming aware. तो वो जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, फिर उनको नेक्स्ट डोज भी लग जाएगी. अगर ये वाला थोड़ा सा अर्ली हो जाता, क्योंकि दोनों डोज के बीच में देयर हैज टू बी अ 3 month गैप पीरियड, तो अगर ये चीज थोड़ी पहले हो जाती, अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा पहले प्रायोरिटाइज कर दिया जाता, तो आई थिंक कि हम बोर्ड्स के लिए अपियर होने के लिए मतलब एलिजिबल थे. और बिकॉज जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी है, आई थिंक कि वो जिन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया काफी चीजों को, ठीक है, वो पूरे दिन घर पे बैठ के पढ़े हैं, दे टुक बोर्ड्स सीरियसली, तो उनको वो पे ऑफ भी होना चाहिए. मतलब दे शुड गेट व्हाट दे डिजर्व. So you बिकॉज फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ डोंट यू थिंक उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स होना चाहिए था? समथिंग दैट यू या मतलब सीनियर सिटीजंस हो गए, फिर उसके बाद 45+ एज वाले हो गए, देन इट शुड हैव बीन द स्टूडेंट्स नेक्स्ट. बिकॉज अब तो जब 18+ आई गया था, तो फिर तो ये रैपिडली हो जाना चाहिए था. बिकॉज आई थिंक बहुत सारे हम में से तो मतलब पीक तक जाकर, जो फर्स्ट में को पीक आई थी, वी हैव मतलब टच दैट. बिकॉज बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के घर पर भी कोविड हुआ था, हमें भी हुआ था. तो अभी नाउ वी आर इन अ बेटर स्टेट, बट नाउ एकदम से कैंसिल करके फिर से लेना, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ स्कैरी फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू दैट ऑल ओवर अगेन. मतलब CBSE की प्रेपरेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन. एंड पूरे साल अगर हमने CBSE करी है एंड ऑल ऑफ अ सडन वी स्विच टू एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होता दैट व्हाट दे हैव टू डू, किससे स्टार्ट करें. एंड लाइक विद इन अ फ्यू मंथ्स दे हैव टू जस्ट प्रिपेयर एंड अपीयर, बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर मतलब जस्ट फोकसिंग ऑन बोर्ड्स, बिकॉज बोर्ड्स के बेसिस पर, मेरिट बेसिस पर बहुत सारे दे कुड गेट इनटू यू नो द गुड कॉलेजेस, द टॉप कॉलेजेस ऑफ DU, बिकॉज DU की यही हुआ करती थी पहले. तो अगर CUCT भी हो रहा है, तो मतलब दे शुड लेट अस नो कि कब होगा, कैसे होगा पेपर पैटर्न. और इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट द कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड्स. लास्ट टाइम तक भी वी ऑल वर यू नो प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर बोर्ड्स कि यार चलो अब हो जाए एक बार, चलो 2 महीने और पोस्टपोन्ड हो जाए, हम कर लेंगे और बस 2 महीने की तो बात है, फिर तो मतलब लाइफ सेट है ना एक तरीके से. बिकॉज बोर्ड्स के मार्क्स, जैसे जिया ने कहा कि UG में, अंडर ग्रेजुएट में इतने ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी दे हैव गिवन अस ऑल्टरनेटिव मेथड्स कि आप एंट्रेंस के थ्रू चले जाओ या ये सब चले जाओ, बिकॉज दे हैव गिवन द कोविड बैच सम प्रिविलेजेस. बट ये चीज प्लेसमेंट्स में आई गेस ये मैटर करेगी, बिकॉज उनका हमारे सामने पूरा
डॉक्यूमेंट होगा जिसमें हमारी सारी चीजें मेंशन होंगी कि हमने कितना स्कोर किया था बोर्ड्स में, एंड दैट समहाउ मैटर्स बिकॉज प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली कॉलेज के बेसिस पर भी होगी, आपने क्या कोर्स लिया है, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, बट द ओनली लेजिटिमेट एग्जाम दैट यू हैव गिवन, जो बहुत स्ट्रांगली आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दिया है बिफोर गेटिंग इनटू कॉलेज, वो हमारा बोर्ड ही था. तो दैट इज सम बेसिस. एंड जो इतनी हाइप होती है कि 12th बोर्ड्स रियली मैटर, 12th बोर्ड्स रियली मैटर, इट डज एक्चुअली, बिकॉज फिर अगर प्लेसमेंट्स में डिफरेंस कहाँ जाता है, जो एवरेज पैकेज जिनको मिलता है और जिनको हाईएस्ट पैकेज मिलता है, सो देयर इज सम डिफरेंट बिकॉज जो टॉप क्रीमी लेयर होती है. एंड 11th में जैसे सरगम ने कहा कि 11th के बेसिस पर तो सबका ही ग्राफ एकदम से डिप कर जाता है, बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स आर न्यू टू यू. You have to, get used to your subjects because you have never seen them, never, touched them ever before. तो आपको उनको used to होने में टाइम लग जाता है. तो पूरी 11th तो आपकी उन सब्जेक्ट से फ्रेंडशिप बनाने में चली जाती है. एंड फिर उसके बाद 12th में यू एक्चुअली गेट सीरियस कि हाँ, नाउ आई हैव टू हैव अ गुड होल्ड ऑन दीज सब्जेक्ट्स, एंड फिर उसके बाद आई विल एस. तो वो जो सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो मतलब थोड़े अच्छे स्टूडेंट्स की होती है कि हमें इतने अच्छे मार्क्स लाने, वो एकदम से वैनिश हो गए. बट डोंट यू थिंक, जैसे आपने बोला एवरीवन इज ऑन द सेम लेवल, तो जब आपके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है, देन डोंट यू थिंक वो आपको एज सच कोई इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, बिकॉज एवरीवन इज ऑन दैट लेवल एंड एवरीवन नोज अबाउट द पैंडेमिक. प्लेसमेंट्स की जो बात है दैट विल बी आफ्टर 3 to 4 years. अभी कोविड इज ऑन द हाई, ठीक है, कोविड बिल्कुल कोविड हर जगह कोविड की बातें होती हैं, बट हमारे से पहले 3rd ईयर वाले बच्चे जाएंगे, फिर 2nd ईयर वाले बच्चे जाएंगे, फिर हमारी बारी आएगी. इट विल बी आफ्टर 3 to 4 years, एंड तब तक सब भूल जाएंगे. पता है, तब हमें एज अ कोविड बैच कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, एंड कोविड विल बी वेरी नॉर्मलाइज्ड आई गेस. तो उस टाइम पर वो सोचेंगे अरे तुम तो 3 साल पहले कोविड बैच वाले बच्चे हो, एंड अभी गेटिंग इनटू कॉलेज ये कहकर कि अरे तुम तो कोविड बैच वाले बच्चे हो. थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि तब वहां पर वो हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर मिक्स्ड क्राउड होगा. यहाँ पर द क्राउड इज ऑल ऑफ द 12th आर गेटिंग इनटू कॉलेजेस, बट उस समय कुछ ड्रॉप आउट्स होंगे, अलग अलग एजेस के होंगे, किसी ने अपनी 12th कभी करी होगी, और फिर उसके बाद वहां पर कॉलेज में मिक्स क्राउड होता है, बिकॉज आप फर्स्ट ईयर वाले हो, फिर 2nd ईयर वाले हैं, फिर 3rd ईयर वाले हैं, यू गेट मिक्सड अप. और वही सेम कंपनीज आपके यहाँ बार बार आएंगी, तो वो ऑल ऑफ अ सडन 3 साल बाद ये नहीं बोलेंगी ओ चलो अब हम आपको प्रिविलेज देते हैं, बिकॉज यू हैव सफर्ड अ लॉट एंड यू हैव सीन अ लॉट. क्योंकि सफरिंग एंड ऑल द सिचुएशन दैट इज गोइंग अराउंड, देखने की बात ये होती है, बिकॉज टिल अ टाइम मार्च तक ऑल वाज फाइन, बट आफ्टर मार्च जब पीक आया, जो 2nd वेव आई है, इसमें लोगों को मेंटली ज्यादा परेशान किया. तो इवन देयर आर स्टूडेंट्स, एंड हम में से भी, वी कुडंट फोकस ऑन आवर स्टडीज मच बिकॉज फैमिलीज भी हैं, मेनी आर गेटिंग अफेक्टेड, बहुत सारे हमारे नोन की डेथ्स हो रही है. सो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस, मतलब हम मेंटली स्टेबल नहीं थे, एंड वी वर नॉट मेंटली अवेलेबल टू डेडिकेट आवर टाइम टू स्टडीज. स्टिल वी डिड. मतलब आई वुड से दैट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 12th till now also we have been regularly studying, and we have been giving our best. हम बस करते जा रहे हैं कि इन द होप कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. Our hard work will pay off and we will be somewhere good. Well, I hope that it pays off and you don't worry about it. And so about the others, I want to Bhavya, like I said and like I asked, कि other alternatives कि आपके हिसाब से. I actually agree with Sargam. मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, बट मेरे हिसाब से बोर्ड्स पोस्टपोन करना एंड सबको वैक्सीन लगवा के भी, वैक्सीन इज नॉट 100% इफेक्टिव. वैक्सीन डजंट मीन कि आपको कोविड नहीं होगा, इट जस्ट मीन्स कि उसके इफेक्ट्स प्रॉब्ली थोड़े कम होंगे. सो मतलब उस केस में अगर आपको एग्जाम के टाइम पे कोविड हो गया तो आप कंपार्टमेंट दे दो, बट देन वो सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आता है कंपार्टमेंट, विच इज नॉट समथिंग दैट एनीवन वांट्स. और प्लस एक और चीज इसमें है कि अब बोर्ड्स डिले तो हो गए और ऑप्शन है कि आप दोबारा दे दो, बट इट ओनली मैटर्स, डिले होना ओनली मैटर्स इफ एनीबडी एक्चुअली कंसिडर्स इट. मतलब जब हमारी प्लेसमेंट हो रही है, सो इस बारे में उनको अगर वो ये सोचें, अब हम 3 साल बाद पता नहीं कैसा होगा सिनेरियो, बट अगर हम ये माइंड में रख के चलें कि वो ये सोचेंगे कि ये बैच था और इनका कंपार्टमेंट डजंट नेसेसरली मीन कि लोग फेल हुए थे या समथिंग, इट जस्ट मीन्स कि प्रॉब्ली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी घर पे या खुद बीमार हो गए थे.
एंड अभी भी यूनिवर्सिटीज कंसिडर करें जो हमारे रीटेस्ट हैं या डिले होंगे, तब तो उससे फर्क पड़ता है, वरना तो डिले करने का जस्ट गोइंग थ्रू दैट ऑल अगेन उसका कोई पॉइंट नहीं है. I think people have to be more considerate enough and remember ki, you know, what was going on, and you have to keep that in mind. That's what I think. And Jia, what's your take? Any other alternative in your mind? So according to me, taking boards was not a possibility at that moment. So they cancelled it. That was fine. So we could have taken, like, they introduced CUCET. That was entrance examination for DU. So that was a quite nice alternative, क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है एंड इट इज वेल प्रोक्टेड, तो चीटिंग का भी कोई ऐसे स्कोप नहीं होता. सो इट वुड बी हैव बीन फेयर. एंड DU में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एडमिशन भी ये सोच के लेते हैं कि इट्स फीस इज वेरी मिनिमम. आपकी फीस नहीं होती तो जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको भी एक इक्वल चांस मिलता है DU. जो आपकी जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, उनकी फीस इज टू मच फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट टू अफोर्ड. So that is not fair to them. So taking exam like CUCET would have been like a good chance for them, and they could have been taken admission into DU. But अब क्योंकि उनके तो स्पेशली इफ यू टेक रिमोट एरियाज एंड विलेजेस, वहाँ पे तो हमें पता ही नहीं कि प्री बोर्ड्स भी उनके हुए नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस हुई नहीं हुई, दे डिडंट हैव नेटवर्क कनेक्शन. तो वहाँ पे कैसे हो पाएगा? तो उनका ग्रेडिंग सिस्टम और हमारे से भी, हम अपने मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके और बुरे होते हैं मार्क्स. तो गेटिंग इनटू DU इज नॉट एट ऑल स्कोप फॉर देम. सो वी शुड थिंक ऑफ डूइंग दिस. Okay, all right. And as Sargam mentioned, कि vaccination is the only option, and there are people, जैसे physical exams, they are saying कि August में हो सकते हैं. So any of you is planning to go for it? या कोई आपके और friends हैं who are actually going for it? या कोई भी it's like 0%, कोई नहीं देने वाला? 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था which basically said कि अगर आप बोर्ड्स रीटेक करते हो तो आपके उसके मार्क्स लगेंगे. नाउ मतलब ऑब्वियसली वी वर ऑल होपिंग कि अगर हमने बोर्ड्स दिए तो हमारा इम्प्रूव ही होगा स्कोर, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि अच्छे ही आएंगे. तो लेट्स से आई डू गिव द बोर्ड्स एंड आई डू टेक द बोर्ड्स, और मेरे नंबर जो मेरे पहले आ रहे थे उससे और कम आ जाते हैं. दैट विल बी अ वेरी हेल्पलेस सिचुएशन फॉर मी. आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई विल रिग्रेट गोइंग टू द बोर्ड्स. एट द सेम टाइम मेरे बाकी फ्रेंड्स जिन्होंने बोर्ड्स नहीं दिए, अगर उनके मुझसे अच्छे आए होंगे by cheating or through any other means. Actually, I forgot to mention, I know a student, I will not name her or the school, but I know somebody जो open schooling कर रही है. और उनके स्कूल ने लिटरली उनको ईमेल पर क्वेश्चन पेपर और आंसर की भेजी है कि आप ये लिख के हमें बाय संडे भेज दीजिए और यू लाइक से देख देख के लिखना. और ऐसी मतलब इफ आई ओनली नो समबडी, देन इंडिया इज सच अ वास्ट कंट्री. ऐसे तो हर नुक एंड क्रैनी पे कोई ना कोई स्कूल होगा. तो एक्चुअली we3 और we4 आर फेसिंग अ डिसएडवांटेज फॉर बीइंग इन अ गुड स्कूल. एंड आवर पेरेंट्स जिन्होंने हमारा एडमिशन कराते हुए सोचा कि DPS है या हंसराज है या ये स्कूल्स प्री बोर्ड्स के टाइम अच्छे से प्रिपेयर करवाएंगे और मुश्किल पेपर रखेंगे कि हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहेगा, they are actually facing a disadvantage. So this is all very it's uncertain and it's a shock for everybody. Also I would like to talk about the CUSET. जो हमने कहा कि अगर CUSET देते हैं तो नॉट नेसेसरली कि जो बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करने वाला था वो उसमें भी अच्छा करे, क्योंकि पूरा पैटर्न ही अलग है. और मुझे एक और बात लगती है, अगर CUSET कराने के आपके पास रिसोर्सेज हैं या आप करा सकते हो तो इससे अच्छा बोर्ड्स ही करा लिए जाते कि मतलब एग्जाम तो बहुत बड़ा है. और इफ एनी a lot of students want to go into DU and if DU says कि CUSET के बेसिस पे हम देंगे तो ऑलमोस्ट उतने ही स्टूडेंट्स CUSET देंगे जो बोर्ड्स देने वाले. पर एन आर्ग्यूमेंट इज कि बोर्ड्स 5 होते हैं, CUSET 1 होता है, बट देन अगेन कुछ ना कुछ करा जा सकता था. और जो वो बात है कि अगर किसी बच्चे को कोविड हो गया और उस टाइम वो बोर्ड्स नहीं दे पाया तो वो तो आई डोंट थिंक दिस इज अ फ्लॉ ऑफ दिस ईयर इन पर्टिकुलर. आई थिंक वो हमारे एजुकेशन सिस्टम की ही फ्लॉ है कि अगर किसी बच्चे को मान लीजिए न्यूमोनिया हो जाता है तो उसे पूरा साल रिपीट करना पड़ता है. ऐसा कोई भी चिकन पॉक्स या जो भी आप ले लीजिए, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ऐसे स्टूडेंट्स के लिए रीटेस्ट अरेंज नहीं कर पाते.
पर अगेन ऐसी तो बहुत चीजें हैं जिन पे करेक्शन लेना है, लेकिन वी हैव टू एक्सेप्ट कि कोविड अब एक बीमारी है, इट्स पार्ट ऑफ आवर रियलिटी एंड इट्स नॉट समथिंग कि हमें तो इसका वो मिलना चाहिए, पार्शियलिटी होनी चाहिए कि हम कोविड बैच हैं, क्योंकि अब तो ये हमारी दुनिया में आ चुका है। तो अगर किसी को कोविड हो जाता और वो बोर्ड ना दे पाता तो ये इस साल की प्रॉब्लम नहीं होती, ये इन जनरल एक प्रॉब्लम है कि अगर आप बीमार हैं तो आपको एक पूरा साल रिपीट करके अगले साल बोर्ड देने पड़ते हैं। तो उस बात पे चर्चा होनी चाहिए, वो इस साल की बात है। And what about the others? कोई है? Are you also planning to give that physical exams या नहीं? बिल्कुल ही नहीं है, big no. आई थिंक इट डिपेंड्स कि हमारा जब रिजल्ट फॉर्म होता है तो उसमें कितनी रेगुलेशन होती है, हमें भी एग्जैक्टली आई थिंक किसी को समझ नहीं आया, वो टीचर्स ही डिसाइड करेंगी। तो अगर उससे हम लोग सेटिस्फाइड हैं, हमें डिसेंट जगह मिल रहा है एडमिशन, तो आई वुड नॉट प्रेफर टू टेक बोर्ड एग्जाम्स अगेन, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत प्रिपरेशन उसमें भी इन्वॉल्व होती है, एंड वंस आई एम डन विद एंट्रेंस एग्जाम्स आई वोंट वांट टू डू दैट ऑल ओवर अगेन। So about taking the exams, I think अगर तो हमें पता चले कि if 12th boards really matter this year, because अब तो थोड़ा जोक सा बन गया है ये कि मैटर करेंगे भी कि नहीं करेंगे, बिकॉज जो हमें रिजल्ट दिया जा रहा है वो एक्चुअल हमारे 12th बोर्ड्स जो हम जाकर देख कर आ रहे हैं उसकी मेहनत तो नहीं है। तो अगर तो वो 12th बोर्ड्स कहीं मैटर होंगे आगे, तो अगर ये हमें क्लियर कर दिया जाए तो वी कैन थिंक अबाउट इट कि हम दे या ना दे। और एक और बात कि अगर हमें बोला जाए कि आपने फिजिकली जाकर भी एग्जाम दे दिया, तो अब अगर आपको लगता है कि स्कूल वाला आपका रिजल्ट ज्यादा बेटर था या जो आप देकर आए हो फिजिकली जो ऑप्शनल बोर्ड्स आप देकर आए हो उनमें से, अगर अब ऐसा ही हो गया जैसे सरगम ने बोला कि क्या पता स्कूल ने ही आपका अच्छा रिजल्ट बना के दे दिया, और अगर आप फिर भी इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो कि बोर्ड में चलो एक बार ट्राई कराता हूँ कि यार कराती हूँ कि मैं शायद इम्प्रूव कर लूँ, तो अगर तो इम्प्रूवमेंट आता है देन वेल एंड गुड, आई विल गो विद दैट रिजल्ट। बट अगर इम्प्रूव नहीं होता है, बिकॉज गारंटी तो नहीं है, तो अगर स्कूल वाला ही उससे बेटर हुआ मान लीजिए, तो फिर विल आई हैव द ऑप्शन टू चूज आइदर ऑफ देम? अगर ये भी हमें श्योरिटी हो जाएगी तो फिर उसके बाद वी कैन थिंक अबाउट इट। बट I want to actually take the exams because यार मेहनत करिए तो थोड़ा लगता है कि यार अपॉर्चुनिटी है, चांस है, तो प्रूव करके दिखा देते हैं कि where do we stand। और प्रूव करने की भी बात नहीं है, I should know that where do I stand। ठीक है, मेरी क्योंकि पूरे साल हम प्रेपरेशन तो करते आए, बट एज सच हमने कोई एग्जामिनेशन वाला एनवायरनमेंट में बैठ के हमने कोई एग्जाम नहीं दिया। वो जो रियलिटी चेक मिलता है आपको कि आपने इतनी प्रेपरेशन तो करी है, बट आपकी गलती कहाँ हुई, कहाँ आपको और ज्यादा सुधारना है, ये सारी जो आपकी लाइफ में एज अ स्टूडेंट लाइफ जो चेक पॉइंट्स आते रहते हैं कि आपको पता चलता है कि अच्छा इस टेस्ट में आपने यहाँ कमी करी, अब आपको इसमें इम्प्रूव करना है। वो चीज पूरे साल थोड़ी मिसिंग रही थी, क्योंकि आप ऑनलाइन एग्जाम्स में अपना सेल्फ एनालिसिस भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको ऐसे एज सच बहुत सारे बच्चों को उन्होंने जो आंसर्स लिखे हैं अगर नोटबुक में, कुछ टाइप करके भेजते थे, कुछ ने नोटबुक में लिखकर पीडीएफ बनाकर भेजा है। कुछ टीचर्स के लिए इनकन्वीनियंट होता था कि वो चेक करके वापस करे या वो कैसे बताए, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो हमको एक्चुअली में रियलिटी चेक नहीं मिला कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। इसलिए नाउ वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स कि हम चलो इसके लिए प्रिपेयर करके देखें, तो चलो ये भी ट्राई कर लेंगे, वो भी ट्राई कर लेंगे, ये भी ट्राई कर लेंगे, सो दैट हमें पता चले कि हमारा लेवल क्या है। तो अगर तो हमें पता चल जाता है कि हमारा लेवल कहाँ है, तो मतलब वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। तो आई वुड वांट टू टेक द एग्जाम्स बिकॉज आई एम रियली कीन कि यार मार्क्स पता तो चले, जो इतनी मेहनत करी है, जो हमने इतने सारे सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हमने कितने अच्छे से प्रेपरेशन करी है, कितने मार्क्स आते हैं उस चीज के लिए यस। बट अगर तो वो फुल एंड फाइनली है कि वही मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, अब यहाँ पर भी बहुत अजीब सी बात है कि कुछ बच्चों के वो मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे जो स्कूल ने बना के दिए हैं, कुछ बच्चों के वो मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे जो उन्होंने जाकर दिए हैं, तो थोड़ा मेस्ड अप सिचुएशन है। I think self growth के लिए you had to have those board exams. It's very beneficial. And I think जो physical exams हैं उसके लिए you have to get clarity and surety. वो I think you really need it at the present. Okay. Yeah, and एकदम से अब हम जब कॉलेज में जाएंगे और हमको जब एकदम से एग्जाम्स हमारे सामने आएंगे, तो हम कहीं उससे एस्केप ना करें, बिकॉज एज यू सेड कि एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ।
तो अंडरगोइंग दैट प्रेशर ऑफ एग्जाम्स इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. मतलब हम वो प्रेशर कितने अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं, हम कैसे मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर पाते हैं, हम कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं. एवरीथिंग मैटर्स एंड एवरीथिंग एड्स अप. तो अगर एकदम से हमें कॉलेज में जाके पूल में गिरा दिया कि चलो अब स्विम करना स्टार्ट कर दो, और अगर हम उस समय डर गए तो बिकॉज अभी तो हम अपने कंफर्ट जोन में थे, हमें क्या करना था, लैपटॉप खोलना था, हम अपने टेबल पे थे, अपने रूम में थे एंड अपने कंफर्ट जोन में पेपर दे रहे थे. बट वो जो एग्जामिनेशन हॉल वाला जो स्ट्रेस होता है, दैट यू कांट एस्केप फ्रॉम देयर. अब तो आप बैठ गए तो आपको तो 3 घंटे बैठ के लगातार अपना पूरा दिमाग लगाकर पेपर करना ही होगा. एंड दैट एक्चुअली शोज योर ट्रू पोटेंशियल कि आप कहाँ स्टैंड करते हो एंड हाउ आर यू ट्रेनिंग योर ब्रेन. I think in life you need best of both the worlds, and I think वो आपको एक मिलता perspective, but yeah, it's okay. Pandemic, I think everyone is going through that. So yeah, so now we've talked about, like I said, the past, the future, the present. Time to talk about the past. कि वो uncertainty, and I think वो तो अभी भी है somewhere or the other, but वो एक stress level बहुत high था. But now actually I think you kind of एक वे बन रहा है, चाहे वो धीरे धीरे हो रहा है, बट आई थिंक वो एक ट्रैक पे आ रही है लाइफ सबकी, बी इट यू स्टूडेंट्स और एनी अदर. बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट, जब वो बहुत ज़्यादा ही अनसर्टेनिटी टू द पीक एंड एंग्जाइटी, स्ट्रेस, सो हाउ डिड यू गाइज डील विद इट? स्टार्टिंग विद यू भव्या, वो फेज कैसा था लाइफ का, वो 20 days, वो पैंडेमिक एवरीथिंग? हाँ, गो अहेड. आई थिंक पूरे टाइम कुछ ना कुछ व्हाट्सएप पे भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. अब ये न्यूज़ आ गई, अब ये स्पेकुलेशन चल रही है, स्पेकुलेशन की न्यूज़ चल रही है, असली में कुछ आया नहीं है बट आने वाला है, इतने टाइम से आने वाला है. तो मतलब वो उस टाइम बहुत एंग्शियस थे हम सब लोग. और हमारे कुछ फ्रेंड्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जा रहे हैं, उनके सबके एडमिशन वगैरह हो रहे हैं, हम लोगों का एग्ज़ाम भी नहीं अभी पता कि क्या रहेगा सीन. तो ऑब्वियसली बहुत एंग्शियस थे. बट पर्सनली मैं एक्चुअली 9th से ही कोचिंग ले रही थी फॉर जेई. तो मेरे को काइंड ऑफ था कि उसकी कंडीशनिंग की अनसर्टेन रहता है, और लाइक 9th से आप एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो 12th एंड में होगा एंड यू हैव नो आइडिया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. तो आई थिंक आई वॉज एबल टू हैंडल इट लिटिल बेटर दैन द एवरेज स्टूडेंट. बट फिर भी मतलब बहुत एंग्जाइटी तो थी ही कि, और बहुत बड़ी बात है मतलब कॉलेज एडमिशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज. हम कहें कि ठीक है लाइफ में इतना मैटर नहीं करता, इवेंचुअली सब नॉर्मल हो जाता है, बट अभी तो बहुत मैटर करता है एंड यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है. हाँ तो एंड जिया, व्हाट अबाउट यू? अगर मैं 20 day पीरियड का बात करूँ जब कोविड वाज ऑन पीक, so at that time my family was also suffering from COVID and it was majorly my grandmother. So she passed away recently. She was good. So but that time, if you would say ki did college or did studies matter to you, it didn't. I was like I had to help my family, and all elders were sick because me and my brother are children, and we could say that our immunity are a bit stronger. So हम थोड़ा फेस कर पाए थे कोविड को, और मेरे को नहीं हुआ उसकी वजह से. तो बट उस टाइम तो आपको यही होता है कि आप बस अपने घर की फैमिली सही है. एवरीवन, आप अपना व्हाट्सएप खोलो, इट इज़ लाइक आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है एंड ऑल दैट, हाई की कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, हॉस्पिटल बेड्स अवेलेबिलिटी. तो एट दैट 20 day पीरियड तो सिर्फ वही दिमाग में था कि बस सबकी फैमिली सही रहे एंड एवरीवन इज सेफ. So at that time, studies were not even a thing in mind. And Sargam, what about you? I completely agree. मेरी फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत critically ill हो गए थे, और it's not just me. Every person I know knew somebody who had COVID or who was in a critical situation. हम चारों के ग्रुप में we studied together. Sanvi started this and we have been studying together for a long time now. But उस महीने तो ऐसा सन्नाटा पड़ गया था. I don't think meeting भी start होती थी. Everybody was so engaged in their own homes. और इतना taxing था, not just for the students but for the population in general. कि the things had gotten so bad. Every day there were more news of people that we knew passing away. And I think my mom and I, we counted one day कि how many people we were acquainted with are no more now after this. So it was a very emotionally challenging period. और उस समय जैसा जिया ने कहा,
education and exams and colleges were the last thing on our mind. तो उस समय तो I think it was right on the government's part that or not right maybe, but उस समय I don't think anybody cared कि कोई update नहीं आ रहा या कुछ नहीं हो रहा. But rightly जैसे भव्या ने कहा, it's so true कि एक अपडेट आता है फिर उसके आधे महीने बाद कुछ और अपडेट आता है which is like 1 or 2 words. It adds, मतलब इतना कम उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि अनसर्टेनिटी वो पूरे महीने बनी रहती है. फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे बहुत दिनों से ऐसे स्पेक्यूलेशन चल रही थी कि कल रमेश पोखरियाल जी आएंगे 4 PM टू अनाउंस अबाउट नीट 2021. और वो आए और उन्होंने कुछ 4 बातें कही कि आप सेफ रहिए, हमारे मन में आप सेफ्टी ही सबसे आगे है, और कुछ भी नया नहीं था बेसिकली उस अपडेट. तो ऐसे कह कि अपडेट आने वाली है, हमारी मतलब टेंशन बढ़ती है फिर घटती है, बढ़ती है फिर ऐसे बहुत अनसर्टेनिटी रहती है. आई थिंक दैट इज मोर चैलेंजिंग फॉर अस. आई थिंक इट्स बेटर अगर वो ना ही बोलें कि अभी कोई अपडेट आने वाली है, क्योंकि अगर अपडेट के नाम पे आप यही कहेंगे जो आप 1 महीने पहले भी कह चुके थे, तो उस अपडेट का कोई मतलब नहीं है. तो दैट इज अ बिग चैलेंज दीस डेज. मतलब अपडेट सच में कोई अपडेट यू नो दैट वो एक बuzz क्रिएट करना इज नॉट रियली गुड एट दिस टाइम. एंड सानवी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? और पहले तो मुझे बता, आपने कैसे एंजाइटी से, डिड यू डू एनीथिंग, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, वेंट फॉर योगा और एनीथिंग लाइक दैट? कोई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो की आपने ड्यूरिंग दैट टाइम टू कोप अप विद एंजाइटी? उन 20 days जो peak था, I don't think so. As everyone said, we didn't care about anything else but the health of our family and our known ones. मतलब सबसे पहले जैसे मेरे फादर एंड मदर, जैसे सबसे पहले मेरे फादर हुए, देन आई गॉट इन्फेक्टेड, फिर उसके बाद माई ब्रदर एंड देन माई मॉम. तो सबकी साइकिल वॉज सो डिफरेंट कि हमें 1.5 month तो सबको ऐसे निकलने में लग गया कि अगर हम सब लोग 14 days भी क्वारंटीन है. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग कोविड, अब 14 days का तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा, बिकॉज इट टेक्स मच मोर देन दैट. एंड कोविड का इम्पैक्ट, जो साइड इफेक्ट जो वो छोड़ के जाता है, वो ज्यादा डेंजरस है. तो कोविड एक बार होकर चला गया, वो समझ में आता है, बट उसके बाद आपको कैसे डील करना है, योर होल रूटीन चेंजेस, कि आपको कैसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, व्हाट ऑल यू हैव टू ऐड, व्हाट ऑल यू हैव टू डिलीट. उन चीजों पर ज्यादा ध्यान हो गया कि आपको खाना कितना अच्छा से खाना है, पीने में क्या आपको हेल्दी ड्रिंक्स पीने हैं, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है पर्टिकुलरली. सब लोग इतने, हमारे जो नोन वंस और जो लव्ड वंस थे, हम यहाँ पर भी आके डिस्कस करते थे. सब लोग, हम चारों एक दूसरे के लिए फोन पे अवेलेबल रहते थे कि कभी किसी को किसी चीज की जरूरत है या कोई एक जेन्युइन, हमारे में वी डोंट बिलीव इन फॉरवर्डेड मैसेजेस जो ऐसे रैंडमली चलते रहते हैं, बट वी वुड से कि हाँ चलो ये वीडियो इज जेन्युइनली नाइस, प्लीज डू रेफर टू इट वंस, इट माइट हेल्प. तो ऐसे मतलब हेल्प तो हुई थी, बट दोज 20 days क्या, वो 20 days से ज्यादा ही एक्सटेंड हो गया था. एंड अभी भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली मेंबर्स एंड अपने आप का भी, एंड जितने भी लोगों को हम जानते हैं, वी हैव टू कीप चेकिंग अप ऑन देम कि आर यू ऑलराइट, बिकॉज दैट इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स. अभी हेल्थ के अलावा उस टाइम पे कुछ मैटर नहीं किया था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं मैटर करी थी, एग्जाम्स हो ना हो कुछ नहीं फर्क पड़ा था. बट वंस वी केम आउट ऑफ इट नाउ वी आर अ लिटिल कंसर्न. तो या आफ्टर दैट तो हमारे अंदर अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ रही थी. आई मीन माई फादर फिर तो रोज सुबह 7 o'clock सबको उठा दिया करते थे कि चलो योगा करो. आई यूज्ड टू डू इट पहले से ही. तो और वैसे भी हम बच्चों की थोड़ी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है. मैं पहले भी करा करती थी मेडिटेशन, योगा. मेरे पापा फिर तो मेरे छोटे भाई को, ही इज जस्ट 8 years old, उसको भी उठा के सुबह योगा कराते थे, मम्मी को भी उठाते थे, सबके टाइम पे ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन लेवल चेक करना. और अब हमारा पूरा डाइट प्लान चेंज हो गया था ऑल ऑफ अ सडन. जितनी हेल्दी चीजें हम खा सकते थे वो भी रेफर करके कि हाँ चलो डॉक्टर ने बोला है इसमें ये एलिमेंट्स है, ये चीजें हमको चाहिए, ठीक है, वेदर इट बी एनीथिंग, आमंड्स, वॉलनट, फिग, फिर उसके बाद जूसेस, फ्रेश जूसर मंगवाया गया स्पेशली कि फ्रेश जूस निकाल के पियेंगे, ठीक है. शेक्स बनने स्टार्ट हो गए. एंड रोज सुबह सबसे पहले उठ के हमारी बेड साइड टेबल पे वो गिलोय और तुलसी का ग्लास रेडी होता था कि सुबह उठते ही आपको वो पीना है. रात में हल्दी वाला पीना है,
ठीक है, ऐसे ऐसे, तो मतलब ये सारी जो चीजें थी, तो वो एक था, माय फादर कॉल्स इट जान बचाओ अभियान। तो वो सब लोग अपनी ही टुक लीव फ्रॉम एवरीथिंग कि चलो अब कुछ टाइम जब तक हम सब लोग हेल्दी नहीं हो जाते, सो दैट वी कैन गेट बैक ऑन ट्रैक, अपने वर्क पे ध्यान दे। तो तब तक तो हमने इतना ध्यान दिया कि इट बिकेम आ नॉर्मल एंड डेली रूटीन, कि अब हम ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इनकलकेट कर दी, तो इट विल कंटिन्यू। तो एंड वी फील हेल्दी नाउ, ठीक है, वी आर वेरी एक्टिव। तो उसके बाद जब वो हिट हुआ, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, एंड आई थिंक कि अच्छे के लिए ही हुआ है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम शायद पहले नहीं करते, बट अब हम कर रहे हैं, हम उन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लाइफस्टाइल हमें चेंज करने का चांस मिला, हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का ज्यादा चांस मिला, उनकी हेल्प करने का चांस मिला। सो उस टाइम पर ये सारी ही चीजें मैटर करती थी, हेल्प एंड सपोर्ट। Well, it feels great कि you guys are feeling healthy now, and that's the most important thing right now. So अच्छा, so now talking about, like you talked about your dad, so इस पूरे duration में, चाहे 20 days हो या उससे पहले पूरे 1 साल या उससे भी पहले, you know, during that, ये तो एक journey हो गई कि with uncertainty, stress, anxiety, तो उसमें आपके parents, like how were they helpful, and उनका क्या पूरा aim था, and were they also going through that stress and वो पूरा process से, या they were like constantly there, या मतलब क्या उनका क्या take था इस पूरे process पे? ओके, सो मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं दोनों, तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते थे, तो वो लोग जा ही रहे थे। एंड फिर सो वी हैड अ मेड, बिकॉज मतलब मेरे को कुक करना नहीं आता है, मेरे भाई को नहीं आता है, सो मतलब वो हेल्प कर देती थी, बट देन ही स्टार्टेड कफिंग एंड ऑब्वियसली वी हैड टू गेट रेडी फॉर, मतलब आप घर चले जाओ। एंड तो एंड देन माय ग्रैंडफादर आल्सो गॉट इट, ही इज पास्ड अवे नाउ। तो पहले ही वाज ओके, मतलब जब शुरू में उनको हुआ, हिज फर्स्ट 10-15 डेज वर परफेक्टली फाइन, मतलब उनको स्लाइट फीवर होता था, बट ही वाज ओके, बट देन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड वर्स होता गया, एंड इवेंचुअली फिर मतलब तो उस टाइम जो मेरे घर पे स्ट्रेस था, मतलब खाना वाज इवन, मतलब जो खाना एक मेन चीज़ होती है ना कि और कुछ ना हो, खाना मिल जाए, वो भी बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं थी। एंड देन मेरे 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक मेरे मतलब दादाजी हैं और मेरी नानी है, दोनों को ही कोविड हो गया था, एंड ये लोग इनके हॉस्पिटल्स में भी, अब दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हैं, तो बहुत स्ट्रेस था, वहाँ भी कोविड का एकदम पीक चल रही थी, तो वहाँ वर्क की तरफ से भी बहुत स्ट्रेस था, और ऊपर से घर पे इट वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। मैं भी जैसे these guys know कि मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटर ढूंढ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, एंड देन वहाँ जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसके बाद भी इट इज़ नॉट कि फ्री हो गए, बिकॉज वहाँ भी बहुत स्ट्रेस है। उन लोगों को भी मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगी, बट वो भी 100% पूरे टाइम अपना एक पेशेंट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे हैं, बेड्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि भाई मतलब सारे टाइम लगे ही हुए हैं। तो मतलब अगेन उस टाइम पढ़ाई तो बहुत ही, खाना ही प्रायोरिटी बहुत कम थी, तो पढ़ाई तो उसके भी नीचे ही थी, बट मतलब मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही कहा कि आप अपने रूटीन से रहो, और मैं कुछ खास हेल्प कर भी नहीं सकती थी, बिकॉज मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मेरे पेरेंट्स ही हैंडल कर रहे थे, बट मतलब वो कह रहे थे कि आप पढ़ लो, आपका जो टास्क है आप कर लो, बट ऐसे कैसे करो, आपका माइंड तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व है, आपके डियर वंस इतने परेशान हैं, सिक हैं, तो बट ठीक है, मतलब अब तो हो गया, नानी गॉट बेटर, मतलब अब वो ठीक है, बट दादाजी फास्ट हो गए, तो अब ठीक है सब, एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल नाउ। Yeah, good to hear that. And what about you, Jyoti? Jia, sorry. For my family, we shifted to naturopathy. Like my mother did all the research possible, and वो दिन में कम से कम 2-2 घंटे YouTube पे सिर्फ naturopathy की videos देखती थी कि what are like they are like my father was quite ill during COVID, तो उन्होंने काफ़ी सारे steroids लिए, तो ड्यू टू दैट अब उनकी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, तो अब उसके जो साइड इफेक्ट्स है उनको ओवरकम करने के लिए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एलोपैथी एंड टेकिंग एनी अदर मेडिसिन, वी शिफ्टेड टू नेचुरोपैथी। वो डेली वॉक पे, एंड वॉक आप बाहर नहीं करने जा सकते थे क्योंकि पार्क, तो वी गो टू टेरेस, हम टेरेस पे जाते थे, घर पे ट्रेडमिल ले आए, एंड वी डिड लाइक घर पे आप जो कर सकते हो अच्छे से, एंड
yoga, breathing exercises daily. Like we used to wake up at 7 o'clock in the morning और सब ऊपर टेरेस पे जाके फैमिली टाइम इकट्ठे स्पेंड करते थे. माय दादाजी ऑल्सो एंड ऑल. तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग में भी हेल्प करता था एवरीवेयर, क्योंकि आप सब घर पे हो, आप बोर हो जाते हो घर पे बैठे बैठे कि कब तक रहोगे घर पे, क्योंकि सबको आदत होती है अपने अपने काम में लगने की. तो हम सारे ट्राई करते थे कि डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब इकट्ठे करें, थोड़ा बेटर है कि सैलड्स इंक्लूड ज़्यादा करें अपनी डाइट में एंड ऑल. तो ऐसे वी ओवरकम. एंड ठीक है, साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत तो इफेक्टेड रहते ही है कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम थोड़ी टाइम तक, बट ठीक है, अब नेचुरोपैथी के बाद तो हो गया सही. गुड. Sargam, what about you? I think last year in March when the pandemic started, उस समय my parents were always telling me to look at the bright side of things, and they've always maintained कि वक्त तो बदलेगा ही. We have no control over the situations around us. We have control over how we react to them, how we respond, and what best we make of them. तो शुरू से ही इनफैक्ट 11th में हमें अटेंडेंस की बहुत दिक्कत होती थी. भव्या विल रिलेट. साइंस किड्स डू नॉट गो टू स्कूल. So our teachers were always telling us कि तुम्हारी 70% से कम होगी तो we can't help you, और हमें बहुत डांट पड़ती थी 11th. तो जब 12th में पूरी 12th ही हमारी जब लॉकडाउन में गई तो it felt like a blessing in disguise in many ways कि हमें घर बैठे बैठे हर क्लास अटेंड करने को मिल रही है. हमारा वर्कलोड इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता था, वरना स्कूल भी जाओ, फिर घर आके कोचिंग भी जाओ, फिर सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालो. अब सब एक जगह हमारी स्टडी टेबल पे इन द कंफर्ट इवन आवर बेड समटाइम्स. अगर किसी दिन उठा नहीं जा रहा तो बेड पे क्लास अटेंड कर लो. तो दैट वे लास्ट ईयर वाज अ वेरी गुड ईयर, बट this and we got to spend so much time with our families, which was just it was impossible in class 11 कि खुद के लिए ही टाइम नहीं निकलता था. तो फैमिली तो it's very difficult to align all of our schedules and find time to spend together. So that way we grew a lot closer, and but this year when it got so bad, that it was bad last year too, but this year I think it touched everybody. कोई भी नहीं बचा इस साल जिसने नहीं देखा अपनी खुद की फैमिली में या अपने बहुत क्लोज रिलेटिव्स में. All of my, I think my mother has 2 siblings. Both of their families have had COVID. My father's brother has had COVID. Nobody has been left untouched by it. And when my grandfather, when he got critically ill, उस समय it brought our family together in so many ways. And पूरे समय हम यही कॉन्सेंट्रेटर अरेंज करने और दादू की तबीयत कैसी चल रही है इसी में लगे रहते थे. तो दैट वाज अ वेरी टैक्सिंग पीरियड, लेकिन उसने हमें इतना कुछ सिखाया, हमारी इमोशनल रेजिलियंस इतनी बढ़ाई है इस समय ने. एंड इट हैज मेड अस रियलाइज कि व्हाट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट. जैसे पहले तो हमें इसी सब से फर्क पड़ रहा होता था कि सैटरडे को कौन से मॉल जाएंगे या ये वाली पिक्चर देखेंगे या ऑर्डर कर लेते हैं कुछ. बट इस समय लाइक भव्या सेड, खाना भी किसी के दिमाग पे नहीं था, मतलब बाकी सब तो छोड़ो. तो इट मेड अस अवेयर कि व्हाट रियली मैटर्स इज आवर फैमिली एंड आवर क्लोज वंस एंड द हेल्थ ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ दीज सुपरफिशियल थिंग्स जिसमें हम पिछले साल के पहले इतने खोए हुए थे कि हमें याद ही नहीं रहता था कि असली में हमारा एसेंस क्या है. हम रोज ही हमारे स्केड्यूल्स इतने पैक्ड होते थे कि आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है. तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए जो टाइम है वो हमें एक्चुअली इस पैंडेमिक के दौरान ही मिला है. एंड डेफिनेटली इट हैज कम एट अ ग्रेट कॉस्ट. वी हैव ऑल सफर्ड सो मेनी लॉसेस एंड दैट कैन नेवर बी रिपेड. इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन बहुत कुछ हमें सिखा के भी गया है. तो वी शुड लुक एट द silver lining of things, and hopefully the third wave will be the last wave. Hopefully it will all end very soon. That's what we're all hoping. It will. And I think somewhere or the other pandemic gave us a little different perspective. जो I think, I know कि it was like you said at a big cost, but somewhere or the other it did. So yeah. Now Sanvi, I want to know how your parents were. You're involved in everything. Family. Just as Jia said, even our family shifted from allopathy to naturopathy. अब क्योंकि कोविड जब when they were critically ill तो steroids लेने ही पड़े थे because they had to come out of it. fever बिल्कुल नहीं जा रहा था. बट स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स, ऑल्दो कहते हैं कि अगर आप स्टेरॉइड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर आप लेते हो तो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं,
बट पता चला कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा डोजेस दी जा रही है, कुछ लोगों को कम दी जा रही है, तो वेरिएशंस इतने हैं. एंड द वंस हु हैव नेवर टेकन स्टेरॉइड्स उनको प्रॉब्लम होती है. लाइक फॉर एग्जांपल माय डैड, उनको हाई बीपी और हाई शुगर की प्रॉब्लम है. ऑन दी अदर हैंड मेरी मॉम को लो बीपी एंड लो शुगर की प्रॉब्लम है. तो हम दोनों को डील करने का तरीका उस चीज से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. एंड जब मेरे फादर बाहर निकले थे घर से फॉर हिज ऑफिस वर्क, तो वन डे ही वाज शिवरिंग कि जैसे अभी बिल्कुल नॉर्मल डेज चल रहे थे. एंड लेटली अभी 1-2 दिन पहले की बात है, ही वाज इन द ऑफिस एंड इन अ मीटिंग. एंड जैसी मीटिंग ओवर हुई, ही वेंट बैक टू हिज केबिन और वहाँ ही वाज शिवरिंग. तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी. एंड ही फेल्ट दैट उनको ब्रीदिंग मतलब सांस फूलना ज्यादा हो रही थी, हाफ ज्यादा रहे थे. तो मतलब वही कंसर्न वाली बात आ जाती है कि ये चीज कभी पहले नहीं होती थी. एंड वॉक एकदम से थोड़ी रुक गई, क्योंकि वॉक जनरली लोग एक कभी सुबह कभी शाम में जाकर करते थे टू मेंटेन देयर हेल्थ. मतलब जनरली कहा जाता है कि अगर आप 10,000 to 15,000 स्टेप्स अगर आप चलते हो तो आप तब भी फिट रहते हो एंड इट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स. पर ये चीज एकदम से बंद हो गई थी क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते थे एंड रिस्क तो था ही. और बहुत टाइम के लिए हमारी जो कफिंग है वो नहीं जा रही थी. एंड मेरी अभी भी मेरे को रात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि मेरी कफिंग नहीं जाती है. एंड इट हैज बीन 2 months जब से मेरे को कोविड हुआ है. एंड तो अभी भी बाहर जाना थोड़ा रिस्की लगता है कि अगर मैं रात को अगर मान लो वॉक करने जाती हूँ तो अगर मैं कहीं कफ ना कर दूं, 1% चांस भी अगर किसी को और को मेरी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए, दैट इज डेंजरस. बट अब जैसे मेरी मम्मी को थोड़ा उनके लेग्स में प्रॉब्लम लग रही है कि एज इफ उनके थोड़े मसल्स या बोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, जितनी पहले नहीं लगा करती थी. मतलब नॉर्मल से तो काफी डिफरेंट है. बट she thinks that it's because of the steroids. But now we have shifted to naturopathy a lot, क्योंकि एलोपैथी एक टाइम तक उसने काम किया, but for a sustainable lifestyle naturopathy पे turn कर जाना is a better option. तो yeah, things are getting back on track. अब जैसे family is all healthy now, अब we can also focus on our things. अभी भी we have got that thing imbibed in us जहाँ पर we all help each other and we मतलब normal हाउसहोल्ड वर्क भी हो या अपनी पढ़ाई भी हो. सो नाउ वी आर एबल टू टॉक फ्रीली, फ्री माइंडेड कि चलो अब थोड़ी सी उस टेंशन से हट के थोड़ी बातें करें. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट नाउ. सो एज जस्ट लाइक सरगम सेड, अ रे ऑफ होप इज कमिंग कि या थिंग्स आर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एंड दे आर गेटिंग बेटर नाउ. एंड वी रियली होप दैट द थर्ड वेव इज द लास्ट वेव और इसके बाद अब कुछ ना हो एंड इसके बाद सब कुछ सेटल हो जाए एंड सब कुछ सही हो जाए. We hope that too. And lastly, quickly, आप मुझे सब चारों बता दो your take on vaccination. पहले तो tell me कि are you guys 18 or 18 above? All of you? Yeah, I am 18. I am still 17. I'm also still 17. 17. So I'm you, okay, you're 18. So you guys have Bhavya and Jia. You guys have vaccinated. You got your vaccine. I have got my first dose, but second dose is pending. Okay, so guys, you can quickly tell me about vaccination. Your take on that? I think there was a study recently where it said that if 70% of people, अगर 70% लोग population में से वैक्सीन लगवा लेते हैं तो थर्ड वेव अवॉइड हो सकती है. तो अगर थर्ड वेव से पहले भी अगर 70% लोग लगा लें तो हम थर्ड वेव अवॉइड कर सकते हैं. हमने सेकंड वेव के चक्कर में देख लिया है, दैट इज समथिंग जो हम नहीं चाहते ऑब्वियसली. तो मतलब आई गेट कि वैक्सीन एक 100% प्रूफ नहीं होता है, बट वो एक तो लॉन्ग टर्म इलनेस प्रिवेंट करता है और प्लस जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना प्रिवेंट, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको तो स्पेशली होगा ही नहीं शायद अगर वो वैक्सीन भी लगवा लें तो लगवानी ही चाहिए डेफिनेटली. And you have got your first dose, right? Yeah. Sanvi, you? Yeah, I think that now vaccination is the only way out. जैसे भव्य ने कहा, I was even gonna state the same thing कि 70-80% या तो आप वैक्सीन लगवा 70-80% of the population या तो उनको वैक्सीन लग जाए या वो इन्फेक्ट हो जाए, तो we can prevent the third wave. तो इट्स बेटर कि अब वैक्सीन ही लगवा दो. कौन चाहेगा कि ऐसे इन्फेक्ट हो, और कोई भी नहीं चाहता कि अब आगे कोई भी इन्फेक्ट हो. तो वैक्सीन लगवाने इज अ बेटर ऑप्शन एंड in fact it's the only option left. So although it's not 100% true और मतलब हमें नहीं पता कि it works 100%, but still we can hope for the best and लगवा लो. Yes. I've also gotten my first shot. First shot you have. Okay. Of Covishield, right?
Yeah, Covishield. Okay. And Jia, what about you? तो वैक्सीन तो मैं भी लगवा नहीं सकती क्योंकि आई गॉट इन्फेक्टेड लाइक अ मंथ अगो, सो लाइक यू हैव टू हैव अ गैप ऑफ 3 months, सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. बट येस, वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में बाहर जाना है, आप सोचते हो कि यू हैव टू रोम इन मॉल्स, आपको वही अपने सैटरडे प्लान्स बनाने हैं फिर से, तो यू हैव टू. सो येस, एंड साथ में और अपने वैक्सीन इज नॉट ऑब्वियसली 100% श्योरिटी, सो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान दो थोड़ा सा. So vaccine लगाओ, but अपनी immunity का भी ध्यान रखो. Yeah, don't be negligent. Yes. Yeah. And yeah, lastly, Sargam, what's your take? Definitely vaccine is our only and best shot right now. And even if बहुत लोग ये कहते हैं कि 100% नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, बट कोविड के अगेंस्ट अगर आपको 1% भी प्रोटेक्शन मिल रही है, यू शुड टेक इट, ग्रैब इट. इन फैक्ट आप ये मत सोचो कि नहीं मेरे को तो या तो मेरे को 100% चाहिए या मेरे को चाहिए ही नहीं. दैट इज फुलिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड आई थॉट कि इस समय मतलब मोस्ट पीपल वुड बी अवेयर ऑफ दिस, बट a few weeks ago I met a friend of mine and she had gotten COVID and I said कि तूने वैक्सीन लगवाई थी? And she said नहीं यार हमने नहीं लगवाई, वो तो मेरे पापा ने लगवा ली थी, उनके ऑफिस ने मैंडेटरी कर दिया. So I think बहुत फैमिलीज अभी तक अवेयर ही नहीं है कि how big of a blessing it is that we have a vaccine available right now, and how many people have worked so hard to create it, and every state government, central governments, everybody is working hard. चाहे आप किसी भी political side पे हो, everyone of position is saying कि आप वैक्सीन लगवाओ. और अगर आपको इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल रही है तो यू शुड डेफिनेटली टेक इट. एंड इट्स नॉट दैट बहुत झंझट है. आई अग्री कि बुकिंग के टाइम पे काफी जल्दी हमें बुक करना पड़ रहा था, वरना स्लॉट्स फिल हो जा रहे थे. लेकिन वंस इट वाज बुक्ड, आई पर्सनली हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई वेंट टू द सेंटर एंड दे गाइडेड मी इनसाइड एंड विद इन 10 minutes. I think that's an exception. I think ज़्यादा ही जल्दी हो गया मेरा, लेकिन I don't think उतना टाइम किसी को भी लग रहा है. और बहुत ही अच्छे से they put it and then you had to just wait for 30 minutes. The following night was a difficult night. उस night बहुत बुखार हो गया था, body ache हो गया था. But it's definitely worth it. It's a price to pay for the protection that you get against COVID, and very qualified doctors and scientists and very learned people have given the green light to the vaccine, so please trust them and get yourself vaccinated. I know. So I think अभी भी एक doubt और हिचकिचाहट है, but if the young mind, the youth can understand, I'm sure the others should as well. And if you guys are so positive about it, I'm sure the others should be. So thank you so much, girls, for connecting with us. It was a pleasure at DNP India to talk to you. I know छोटा सा बोला था, but बहुत ही लंबा discussion चल गया. But I think it was really needed at the time, at the moment. So thank you so much. Really. So देखा आपने? Did you hear them out? जब ये लोग वैक्सीनेशन की अहमियत समझ रहे हैं, being at such young age, why can't you? So अभी भी कोई डाउट है? Then just leave it aside. So these girls, and I am sure इस टाइम पे सभी students are in this position, but the fact that they're facing these hurdles with so much positivity is what makes them different. So कर्म करते रहें. Do everything with determination and hard work, and I am sure, really sure that you will surely excel. All the best to all the aspiring students out there. So if you like today's segment, then please do like, share and subscribe to DNP India. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Keep showering your love, keep loving our videos and keep watching DNP India.